अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे मगर आका न मिलेगा। तारीख अगर कहती है सानी है मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बेशक हमने तुम्हें तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सदर अली वक़ार रहमतल लिल आलमीन यानी हमारे प्यारे नबी कि जिन्हें आखिरी नबी बनाकर भेजा गया। सदर अली वक़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर अबू बकर आए तो सिद्दीक बन गए, उमर आए तो फारूक बन गए, उस्मान आए तो गनी बन गए। हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सिम हो जाए कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। सदर अली वक़ार अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक कामयाब होंगे वो मोमिन जो अपनी नमाजों में खुशबू करने वाले हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब होगा वो है नमाज। नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमिन का नूर है, नमाज दिल का नूर है, नमाज अफजल जहाद है, नमाज इस्लाम की अलामत है, नमाज शैतान का मुकाला करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो होती नहीं है यूं ही अदाए नमाज इश्क, हाँ शर्त है कि अपने लहू से वज़ू करो। स्कूल का बैग पीछे लटका कर जाता है और मकतब का बैग आगे लगा कर आता है। ये बैग ये पैगाम देता है और ये बैग ये सबक दे रहा है। عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مولانا عبدالرحیم صاحب تشریف لائے ہماری مسجد میں جو مکتب چلتا تھا اور جس کا یہ سالانہ چوتھا جلسہ ہے، ہمارے اس مکتب کو الحمدللہ 4 سال مکمل ہو چکے ہیں اور ہمارے اس مکتب کا یہ سالانہ جلسہ ہے جس میں جو سال بھر ہمارے عزیز طلبہ اور طالبات علم حاصل کرتے ہیں وہ آپ تمام حضرات کے سامنے لب کشائی کریں گے اور جو انہوں نے پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے سنائیں گے. محترم عزیزو، یہ اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے پاس ہماری اولاد کو بطور نعمت کی عطا فرمایا ہے. یہ امانت، اس کی امانت کی حفاظت اور کما حق ہو حق اسی وقت ادا ہوگا جبکہ ہم ان کی صحیح تربیت کریں اور صحیح تعلیم ان کی کریں گے. اس کی حدیث پاک میں آتا ہے علموا اولادکم الخیر وادبوہم، اپنی اولاد کو علم دین حاصل کراؤ اور ان کے تربیت کا انتظام کرو. یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے. جس طرح کے والدین کی ذمہ داری ان کو کھانا کھلانا اور کما کر لا کر ان کی ذمہ داری اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اسی طرح ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو علم دین سکھانا اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا. یہ ہماری اولاد، یہ ہمارے پاس امانت ہے. یہ امانت کا حق اسی وقت ادا ہوگا جبکہ ہم ان کی صحیح تربیت کریں گے اور ان کا علم حاصل کرانے کا انتظام کریں گے. یہی اولاد ہے. ہم نے ہماری اولاد کو ناظر قرآن کریم سکھانے کا انتظام فرمایا ہے اور ہمارے اولاد نے اور ہمارے بچوں نے اگر قرآن کریم کو یاد کیا، حفظ کیا، تو یہی اولاد ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں چین و سکون کا ذریعہ بنے گی.
اگر ہم نے اولاد کو حافظ قرآن بنایا تو یہی اولاد ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سعين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، اساتذہ اکرام، مہمان خصوصی اور میرے تعلیمی ہم سفر کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے رحمت للعالمین. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے مگر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر کہتی ہے ثانی ہے محمد، تاریخ اگر کہتی ہے ثانی ہے محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. صدر علی وقار رحمت للعالمین یعنی ہمارے پیارے نبی کہ جنہیں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، حضرت آدم کی بزرگی سے لے کر حضرت نوح کی تبلیغ تک اور حضرت داؤد کے قربانی سے لے کر حضرت یوسف کے حسن تک، یہ تمام خوبیات صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی. آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. رحمت للعالمین نے عورتوں کے حقوق بتائے کہ جو عورتیں پیدا ہوتے ہی درگور کر دی جاتی تھی وہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی صورت میں قابل ذکر ہے. رحمت للعالمین نے حبشہ کے غلام بلال حبشی کو مدینے کا موزن قرار دیا. آپ سے پہلے جہالت کا دور تھا، کہیں پانی پلانے پر جھگڑا، کہیں پانی پلانے پر جھگڑا تو کہیں گھوڑے آگے دوڑانے پر جھگڑا. جہاں انسان تو تھے انسانیت نہ تھی، دل تو تھے دل نوازی نہ تھی، روح تو تھی روحانیت نہ تھی. بھائی بھائی کا دشمن، قبیلے قبیلے کا حریف، ہمسائے ہمسائے کا رقیب. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سرے آفری رشک بہ گئی دنیا، سرے آفری رشک بہ گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سردار علی وقار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق بن گئے، عثمان آئے تو غنی بن گئے. لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے لیکن آپ ان کے حق کے لیے دعا کرتے رہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسن کردار سے نور مجسم ہو جائے، حسن کردار سے نور مجسم ہو جائے کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خدا کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں. آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. ان کے ہی ان کو میرے کو بھی کچھ انعام دیا جاتا ہے. بیٹا اس بچے کی ضرورت برکت دے اور ان سے اللہ اس کا نوازے. اس کو جو ہے کبھی جو رقم ہے جو حضرات ہیں جنہوں نے رقم دی ہے ان کی طرف سے جو ہے ایسے بچوں کو انعام دیا جائے.
ابھی ہم نعت پاک سن رہے تھے، اور اس کے بعد ہمارے جو ننھے منھے بچے ہیں، ایمان و عقائد، کہ ایک ایمان والے کا ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس تعلق سے ہم ابو ذر اور ان کے ساتھیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال: زمین و آسمان کی سلطنت کس کی ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کی سلطنت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ کے بہت سے پیارے پیارے نام ہیں. ہمیں کس بات پر عمل کرنا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کا طریقہ کیسا ہے؟ اسوۃ حسنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سب سے اچھے ہیں. کس کی ذات سے زمین آسمان روشن ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. اور اللہ تعالیٰ کے لیے زمین آسمان روشن ہے. زمین آسمان کے خزانے کس کے ہیں؟ خزائن السماوات والارض. اور اللہ تعالیٰ کے لیے زمین آسمان کے خزانے ہیں. ہوئی، لیکن یہاں آ کے کچھ پڑھ لینا، یہ بہت ہی ہمت کی بات ہے، کیونکہ دوسرے کے اس لیے ایک ہوتا ہے اس سے بھی گفٹ ہے. یہاں بڑھنے کے بعد اچھے اچھے شہر تو بھی پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، اس لیے بھی یہاں پڑھنا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ ان بچوں کو مزید علم سے نوازے. یہ نکال لے. چل آ جاؤ. سنانے کے لیے اور ان کے ساتھی کو دعوت دیتے ہیں جو آئے تھے. یہ کہتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہونا کرنے والا سب نماز دوں گا. پہلی نماز کا نام کیا ہے؟ دوسری نماز کا نام کیا ہے؟ تیسری نماز کا نام کیا ہے؟ تیسری نماز کا نام کیا ہے؟ تیسری نماز کا نام کیا ہے؟ چوتھی نماز کا نام کیا ہے؟ چل لے جلدی سے چل لو. ارے کیا بات، چل لے بیٹا. اس کے بعد سارے کو شیرہ سنا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ و سیرت. سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: مکہ المکرمہ میں. سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کہاں ہوئی؟ جواب: مدینہ المنورہ میں. سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فادر تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کے فادر تھے. سوال: صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت محمد. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت محمد. چلا جاؤ نیچے دیکھو. چلا جاؤ ادھر. چلو چلو بسم اللہ. چلو اے ماشاء اللہ. چلا جاؤ تو بیٹے نیچے اترو. چل جاؤ. اندر ہاتھ نہیں رکھو نا، باہر رکھو نا جی. ہم لو چل لو جو بیٹے. ارے چلو، راستہ کس کا دے گا؟ چلو ماشاء اللہ. چل لو. اس کے بعد اخلاق و آداب سنانے. بسم اللہ الرحمن
के जाइए। चलो चलो बेटा, आराम से उतरो, आराम से उतरो, चलो नीचे देखिए। अभी हम अखलाक व आदाब, लो यानी इंसान की जिंदगी गुजारने के आदाब क्या है, चलो किस तरह उसको जिंदगी गुजारना चाहिए, उसके अखलाक कैसे होने चाहिए, झूठ बोलना है या नहीं है, झूठ बोलने की इजाजत है या नहीं है, कि हमेशा सच ही बोलना है। कि बच्चे की माशाल्लाह इसका खराब होने की वजह से बच्चे की जो तकलीफ के जज्बात भले ही है तो हमारे कामों तक ना पहुंचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल तक जरूर पहुंच जाएगी। क्योंकि मकसद सब जानते हैं, इसलिए बच्चे जो है तो इतने जज्बात लेके बातें कही है। और हमें भी हमारी तस्वीर अता फरमाए और इस बच्चे को अल्लाह दोनों राह की कामयाबी से नवाज दे। इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर है। चल बेटा जल्दी चल, नंबर 6 से हदीस नंबर 10 तक चल वो बच्चे तैयार है। चल देख यासीन, आराम से उतर बेटे, इसका हाथ पकड़ ले, चल लो, ये लो, चल ले बेटा, ये लो, माशाल्लाह, चल लो। हदीस नंबर 6 अल-जन्नतु ताहता अक़दामिल उम्महाती, जन्नत माँ के कदमों तले है। हदीस नंबर 7 अलैकुम बिस्सिद्क़ी, सच्चाई को लाजिम पकड़ो। हदीस नंबर 8 ला यशरबन्ना अहदुम मिनकुम क़ाइमन, तुम में से कोई भी खड़ा होकर पानी ना पिए। हदीस नंबर 9 अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम फैलाओ। हदीस नंबर 10 तहादू तहब्बु, आपस में हदिया दो और आपस में मोहब्बत बढ़ाओ। हदीस नंबर 11 वला तबागज़ू, आपस में घिना मत रखो। हदीस नंबर 12 वला तजस्ससू, एक दूसरे की डोर में मत लगो। कैमरा चालू है, टीवी पे इसके बाद सुन्नत नबवी सुनाने के लिए हज़रात और उनकी साथी तैयार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुन्नत नबवी किसी मुसलमान से मुलाकात हो तो क्या कहे? जवाब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल हर काम के शुरू में क्या पढ़ना चाहिए? जवाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल जब किसी मुसलमान से मुलाकात हो तो क्या जवाब जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए दे। जब अपने मदरसे में दाखिल हो तो क्या सलाम करे? जब अपने घर से दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करे। ठीक है, माशाल्लाह। चलो भाई, ये भी अपना इनाम लेकर जाए, माशाल्लाह इनके लिए भी नाम है। इसके बाद खाना खाने की सुन्नतें सुनाने के लिए चले। नंबर 2 दस्तरखान बिछाना। नंबर
उसके बाद मुसलमान चलिए बेटे, आ जाओ। बरकत के ताल्लुक से अर्शिया और उनकी शैली आ रही है। चलिए, ये लो, ये लो, ये लो। असल में नीचे देख बेटे, बैठ यहाँ से ना। चलो चलो शुरू करो, 20 मिनट। उधर अस्सलामुअलैकुम मैडम, मैं अहमद फला बैंक महाराष्ट्र बैंक से आया हूँ और आपके लिए जबरदस्त मदद स्कीम का पैगाम लाया हूँ, जिसमें आपके पैसे महफूज भी रहेंगे और जमा बढ़ते भी रहेंगे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे घर घुसा है। मैडम बुरा ना माने, लेकिन आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो भाई कोई बात नहीं सुनना चाहती, फौरन यहाँ से निकल जाओ। मैडम, ये स्कीम आपके सारे माली मिसाल हल कर सकते हैं। अगर आपको पैसे की फौरी जरूरत हुई तो ये स्कीम सूदी कर्ज की भी सहूलत देती है। बैठिए बैठिए, ये लीजिए पानी पीजिए। उधर इधर मत देखो, उधर देखो, उधर उधर बात नहीं करो। हाँ बस बात बोलो। मैडम देखिए, ये स्कीम आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप हर माह थोड़ी रकम जमा कराएं और इसका मुनाफा हासिल करें। साथ ही अगर कभी माली जरूरत हो तो हम आसान किस्तों पर कर्ज भी फराहम करते हैं। ये तो वाकई दिलचस्प लग रहा है, लेकिन मैं अकेली फैसला नहीं कर सकती। क्यों ना मोहल्ले की औरतों को बुलाकर मेरे पास समझाया जाए? ये तो बहुत अच्छा हुआ, आप इन्हें किसी बहाने से अपने घर बुलाने स्कीम की तफसीलात समझा दीजिए। अपने सहयोग दावत के बाद बुलाती है, सभी जमा हो जाती है। बहनों, आज मैंने आप सबको खास काम से बुलाया है, जिसमें हम सबका फायदा है। यह है अहमद साहब, जो फला बैंक की तरफ से आए हैं और ये हमें एक शानदार स्कीम बारे में बताएंगे। मैडम देखिए, ये स्कीम आपके पैसे को महफूज रखने का बेहतरीन जरिया है। आप हर माह थोड़ी रकम जमा कराएं और बदले में मुनाफा हासिल करें। इसी पर बस नहीं, बल्कि अगर आपको कोई फौरी जरूरत हुई तो ये स्कीम सूदी कर्ज की भी सहूलत दी जाएगी। अहमद भाई, ये बताइए कि कर्ज पर कितना सूद होगा? बहन जी, सूद की शरह बहुत मामूली है और हम आपके अदायगी की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए आसान किस्से बनाएंगे। लेकिन क्या ये वाकई हमारे लिए महफूज है? जी बिल्कुल, आपके पैसे बैंक में महफूज रहेंगे और हमें मुनाफा भी मिलेगा। क्या सब औरतों को मीटिंग में शरीक होना होगा? सिर्फ एक बात याद रखें, इस स्कीम को फवायद हासिल करने के लिए हमारी माहाना मीटिंग में शिरकत करनी होगी। इन मीटिंग में मस्जिद मवाक़िफ़ के तरक्की के तरीके बताएंगे। लेकिन अरे ये हो गया, ये इसी बात में। रेहाना बाजी, ये तो बहुत अच्छा है, हमारा पैसा महफूज हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, महफूज ही नहीं बल्कि हर महीने बढ़ते भी रहेगा। बहनों क्या बात है, तुम सब क्यों जमा हुए हो? बहनों क्या बात है, तुम सब क्यों जमा हुई हो? मैडम, मैं इनको बचत स्कीम का फायदा समझा रहा था। आप तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी मालूम होती हो और इस स्कीम के बारे में खूब जानती होगी। मैंने आपसे पूछा, मैं गैर महरम से बात नहीं करती और इस्लाम इसकी इजाजत भी नहीं देता। सॉरी मैडम जी। बहनों, ये स्कीम सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन क्या आप जानती है इस स्कीम में सूद शामिल है और सूद इस्लाम में हराम है। लेकिन ज़ैनब बहन, हम तो अपनी सहूलत के लिए ये कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला और गवाह सब पर लानत फरमाई है। लेकिन ज़ैनब बहन, अगर पैसों की सख्त जरूरत हो तो क्या करें? बहन, अल्लाह पर भरोसा करे, अपने खानदान या करीबी लोगों से मदद मांगे। हराम तरीके से फर्ज हासिल करना दुनिया और आखिरत में नुकसान का बाइस है। और ये जनाब जो माहाना मीटिंग्स की बात कर रहे हैं ना, इन माहाना मीटिंग्स में बेपर्दगी का भी खदशा है। याद रखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर्दे की चीज है, जब वो बाहर निकलती है तो शैतान इसे झांकता है। वाकई मीटिंग में तो सब बेपर्दा ही होती है। और सुने, हमारे इलाके में एक हमीदिया नामी खातून ने भी ऐसी स्कीम में शिरकत की थी। उन्हें कुछ रुपए की जरूरत थी तो वो भी इनके झांसे में आ गई। सूदी कर्ज ले लिया, मगर जब सूदी कर्ज वापस ना कर सकी, इन बैंक के कारंदों ने इनसे नाजायज मुतालबे शुरू कर दिए। वो बेचारी अपनी इज्जत,
दीन दोनों से हाथ फेंटी। अच्छा हुआ ज़ैनब बाजी आप आ गई, वरना हम सबकी दुनिया और आखिरत का नुकसान हो जाता। अरे भाई अभी तुम खड़े हो यहाँ, जाओ अपना काम करो और दोबारा दिखना नहीं हमारे मोहल्ले में। ज़ैनब बहन आपने हमें बचा लिया, हम वाकई एक बड़ी गलती करने जा रहे थे। ज़ैनब बहन आपका शुक्रिया। सब दुआ करती है कि अल्लाह हमें दीन पर कायम रखे और दुनियावी फितनों से महफूज रखे, आमीन। चीज को पेश किया है, मैं भूलना नहीं चाहता। इसमें हमारे इलाके की बहनें, इन्होंने प्रैक्टिकल इसलिए करना पड़ा क्योंकि हर ऐसा समझो 10 घर में एक घर इसमें मुब्तला है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। इसीलिए भाई आज जो हालात के शिकार है, हराम खाना, हराम बेचना, हराम खरीदना, हराम में हमारा साथ देना, इसलिए ये बच्चों को खास तौर से इसकी जो है तो ट्रेनिंग देकर इनके उस्तादों ने बड़ी मेहनत की इनके ऊपर, और मेहनत करके इसको अमली तौर पर पेश किया। अब दोस्तों हमारा काम है, इन्होंने तो बता दिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब हमारे को इसको अमली जिंदगी में लाने के लिए अगर कर लिए तो तौबा कर ले, और नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी हिफाजत फरमाई है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो इनके लिए भी इनाम है, ये अपना इनाम लेकर जाए। चलो आ जाओ। नीचे देख के माशाअल्लाह। अल्लाह ताला को पसंद है, अकीदा ईमान है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि हर मुसलमान पाक और साफ रहे। हम मुसलमान हैं, हमको पाक और साफ रहना चाहिए। जो बच्चे पाक और साफ रहते अल्लाह उनको पसंद करते। मुसलमान बैठकर पेशाब करे, पेशाब करने के बाद पानी से ताहरत हासिल करे। ठीक है माशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह इनको बेहतरीन बदला दे, बेहतरीन जज़ाए खैर दे। अल्लाह इनकी रात तो नहीं बोलता। इनकी तरक्की अता अल्लाह फरमाए। ताला का हुक्म है, क्या बोलता? चला जाओ बेटे। ऐ शाबाश, क्या बात। चल जाओ, ले बेटे ले चलो। इसके बाद मुस्लिम बच्चा, ये नजर है सुनाने की। लाई वबरकातुहू। मुस्लिम बच्चा, कितना अच्छा मुस्लिम बच्चे, हरदम नेकी करने वाले, अपने रब से डरने वाले, कितने अच्छे मुस्लिम बच्चे। जब भी मुंह खोले सच ही बोले, जब भी मुंह खोले सच ही बोले, बात को बोले पहले तोले, कितने अच्छे मुस्लिम बच्चे। चोरी चुगली गाली गीबत, चोरी चुगली गाली गीबत, इन बातों से रखे नफरत, कितने अच्छे मुस्लिम बच्चे। दुखियारों के काम आते हैं, दुखियारों के काम आते हैं, बेचारों के काम आते हैं, कितने अच्छे मुस्लिम बच्चे। हक छोटों का वो पहचाने, हक छोटों का वो पहचाने और बड़ों का कहना माने, कितने अच्छे मुस्लिम बच्चे। सच्चे दिन का जानने वाला, सच्चे दिन का जानने वाला, रब की बातें मानने वाला, कितने अच्छे मुस्लिम बच्चे। बच्ची ने जो है तो पेश किया है, उनके लिए भी जो है तो भाई इनाम है। अल्लाह जो है तो इस बच्ची की उम्र में बरकत अता फरमाए और मजीद इल्म से नवाजे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमान हैं। हमारा दीन इस्लाम है, इस्लाम ही सच्चा दीन है। इस्लाम के मानने वालों को मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम अल्लाह के ताबेदार को कहते हैं। हम मुस्लिम हैं, हम अल्लाह के ताबेदार हैं। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के ताबेदार हैं। हम अल्लाह के ऊपर चलेंगे। हमारा अल्लाह बहुत अच्छा है, सारी अच्छाइयाँ उसके अंदर है, और सिर्फ उसे अच्छी और सच्ची बातें पसंद है। उसने अच्छी बातों का हुक्म दिया है और बुरी बातों से रोका है, तो हम अच्छे और सच्चे बन जाएंगे।
اللہ اسی عمر میں برکت دے. بہت دن سے محنت کر کے جو ہے تو بولے اب میں بہت اچھا پڑھوں گا. اتنا ہے کہ بڑا والا انعام میرا رہے گا. ٹھیک ہے, ابھی انعام کا وقت تو نہیں آیا, لیکن آپ کو جو ہے تو دیا ہے وہ جو ہے تو انعام سے ہی ترنت میں دے دیتے ہیں. باقی انشاءاللہ بڑے انعام کی جو ہے تو جب وقت آئے گا دے دیں گے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام کیا ہے؟ جواب لا الہ الا ہم سب کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. جواب ہم سب کا خالق کون ہے؟ جواب الخالق اللہ ہم سب کا پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. جواب ہم سب کو روزی دینے والا کون ہے؟ جواب الرزاق اللہ ہم سب کو روزی دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. جواب ہم سب کو روزی کتنی ہے؟ جواب اللہ واحد اللہ تعالیٰ صرف اکیلے تنہا ہے. اللہ واحد اللہ تعالیٰ صرف اکیلے تنہا ہے. ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین, اساتذہ اکرام, مہمان خصوصی اور میرے تعلیمیان سفر کے ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے نماز. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں, نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں, نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. صدر علی وقار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک کامیاب ہوں گے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ ہے نماز. اگر نماز پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے, اور اگر نماز بیکار اور خراب نکلی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے, نماز جنت کی کنجی ہے, نماز مومن کا نور ہے, نماز دل کا نور ہے, نماز افضل جہاد ہے, نماز اسلام کی علامت ہے, نماز شیطان کا مقابلہ کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. آمین. اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرتی ہوں. ہوتی نہیں ہے یوں ہی ادائے نماز عشق, ہوتی نہیں ہے یوں ہی ادائے نماز عشق, ہاں شرط ہے کہ اپنے لہو سے وضو کرو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا انداز میں پیچھے دیا, یہاں سے بھی حریف صاحب یہ اپنا انعام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 13. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب الحلوى ولا صلى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے میٹھا اور شہد. حدیث نمبر 14. لا تشربوا واحدا كشرب البعير. تم میں سے کوئی بھی پانی نہ پیے اونٹ کی طرح, یعنی ایک سانس سے. حدیث نمبر 15. لا تشرک باللہ شیئا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. حدیث نمبر 16. ولا تعقن والدین. والدین کی نافرمانی نہ کرو. حدیث نمبر 17. ولا تحلف باللہ کاذبا. اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم نہ. اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تشہد. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم
على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. माशाअल्लाह ये बच्चों ने जगह तो दिया है. अब कमा भारत तक की जगह कमा 16 का पड़ गया है ना भाई. होता है कभी कभी जो तो हम भी हो जाते हैं नमाज में होता है हमसे भी. अब इन्होंने भी बगैर नमाज के पढ़ा है. हम सही पढ़ने वाले बन जाए बस इनके लिए भी नाम कैसे करते कड़क कड़क ये पिक्चर जोया अक्सर उनकी सही है. अरे मिसबा बाजी, इतनी सख्त धूप में आप दोनों बुर्खा ओढ़कर कहाँ जा रही हो? अरे मिश्रा बाजी, आपको मालूम नहीं आज जुम्मा का दिन है और हर जुम्मा को हमारे मोहल्ले में औरतों का इज्तिमा होता है और इस जुम्मा को हमारे मोहल्ले की मरियम दीदी के घर औरतों का इज्तिमा है. हम सब उसमें शिरकत कर रहे हैं. आप भी हमारे साथ चलिए. अरे ना जी, इज्जत माँ क्या होता है? सुनते सुनते तो हमारे कान ही पक गए. जब देखो इज्जत माँ, जब देखो इज्जत माँ. बाजी, इज्तिमा में दीन की, ईमान की, अल्लाह की और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अच्छे अखलाक को अपनाने की बातें होती है. अच्छा मैं समझ गई. इसमें कोई एक औरत खड़ी होगी और वो कहेगी नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात अदा करो, फिल्में मत देखो, गाने मत सुनो, बेपर्दा मत घूमो, टीवी मत देखो, बाजार में मत घूमो, लिपस्टिक हाफ आस्तीन के कपड़े मत पहनो, लिपस्टिक मत लगाओ, नेल पॉलिश मत लगाओ, वगैरह वगैरह. यही ना? हाँ, वो हमारे मस्जिद के इमाम साहब है ना, वो भी इस तरह की बातें बयान करते रहते हैं. ये सब बातें सुनते सुनते तो हमारे कान ही पक गए. अब बस अब और कुछ नहीं सुनना. अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे. आप सब लोग कैसी बातें कर रहे हैं? अब लगता है कि आप लोगों का दीन से और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं और आप लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल को जरा बराबर भी खौफ नहीं, इसलिए आप लोगों की ज़बान और बोल बंद रही है. ए लड़की, खबरदार जो तूने हम लोग पर एग्जाम लगाया तो याद रखना, मेरी वजह से ना चाहते हुए भी सटान खान की तरह पठान साहब की बेटी हूँ, तेरी सब हेकड़ी निकालूंगी. सब एवेंस की ये भी कोई बात हुई का हमारे दिलों में अल्लाह और रसूल का जरा बराबर भी खौफ नहीं और हमारा दीन और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं और हम लोग तुम्हीं से ज्यादा दीन की बातें जानते हैं. दोबारा ये बात अपनी जबान से निकाली तो तेरी जबान ही डालूंगी. अरे बाजी, आप लोग तो बुरा मान गए और अपनी जाहिलियत को सबके सामने जाहिर कर दिया. हमारा मतलब आप लोगों को बुरा भला कहना नहीं था. हम सबकी जिम्मेदारी ये है कि अगर हमारे सामने दीन या दीन की बातों का मजाक उड़ाए तो उसकी फौरन इस्लाम करें और दीन की फजीलत को उसके सामने रख दें. अरे बहन, आप हमें गलत समझ बैठी है. हम मुसलमान हैं, हमें दीन की बहुत मालूमात है, दीन का मजाक नहीं उड़ाते हैं. अरे मिश्रा बाजी, क्या आपने मगरिब की नमाज अदा कर ली? नहीं बाजी, आपने मगरिब की नमाज क्यों अदा नहीं की? अरे बाजी, कान खुजाने की फुर्सत नहीं, नमाज कैसे पढ़े? अरे बाजी, अभी तो आपने कहा कि हम सबको दीन की बहुत मालूमात है लेकिन नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं. यह कौन सा दिन और कौन से दिन से मोहब्बत? बाजी, जबान से कहना काफी नहीं, असल का अमल मकसूद है. और आप ये कहना चाहती है कि नमाज के लिए फुर्सत नहीं, यानी आपका ये कहना है कि नमाज वो लोग पढ़ते हैं जिनको कोई काम नहीं होता. नमाज पढ़ना उन लोगों का काम है जो बेकार होते हैं. नमाज तो अल्लाह का हुक्म है और एक दिन में 5 नमाज़ें फर्ज है. अरे बाजी, मगरिब की नमाज छूट गई तो क्या हो गया? तौबा तौबा, अगर हम मगरिब की नमाज छोड़ देंगे तो कब्र में बड़े बड़े सांप आकर डसेंगे और बड़े बड़े बिच्छू आकर डस मारेंगे. अपन अपने घर की चीज गली से डर जाते हैं, अगर हवा से दरवाजा हिल जाए तो डर जाते हैं.
पर आखिरत में हमारी चीख को पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा। उस अंधेरे घर यानी कब्र के बारे में क्या आपने सोचा है? क्या वहाँ क्या होगा? अरे बाजी, ऐसी बातें ना करो, डर लगता है। नमाज तो पढ़नी ही चाहिए। देखो ना, नमाज पढ़ने में कितना मजा आता है। बाजी, आप जानती है नमाज क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों का नूर है और अल्लाह से मुलाकात का जरिया। अरे बाजी, अल्लाह तौबा। बाजी, ये तो बता दीजिए, दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, ज़कात अदा नहीं करते, क्या इन्हें भी सांप बिच्छू डसेंगे? जी बाजी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये सजा सभी को मिलेगी और इससे बड़े अज़ाब तो जहन्नम में मिलेंगे। इसलिए बाजी तौबा कर लो। तौबा करती हूँ कि वक्त निकाल कर नमाज पढ़ूंगी। अरे बाजी, आप तो वक्त निकालने की बात कर रही है। नमाज पढ़ने में थोड़ी ना 2-4 घंटे लगते हैं। हम 2 घंटे मेकअप के सामने लगा देते हैं और 2 घंटे टीवी के सामने। अगर कोई मेहमान आ जाए तो 1-2 घंटे आराम से ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जिस खुदा ने हमको पैदा किया, खूबसूरत अक्ल अता फरमाई, बोलने के लिए ज़बान दी, देखने के लिए 2 आंखें दिए, खाना खाने के लिए 2 हाथ दिए और भी बेशुमार नेमत अता फरमाई, क्या हम उसके लिए 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते? अरे बाजी, आपने तो बिल्कुल ठीक ही कहा। वाकई हमारा बहुत सारा वक्त मेकअप और टीवी देखने में चला जाता है। बाजी, हमें नमाज के बारे में और भी बताइए, ना कि हम भी नमाज के पाबंद बन जाए। अरे बाजी, मैं आपको नमाज के बारे में क्या बतलाऊं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज मेरी आंखों का नूर है, नमाज मेरे दिन का सुकून है, नमाज नमाज़ियों के लिए आखिरत का सबब है। जिसकी नमाज अच्छी निकली उसके बाकी अमल अच्छे, और जिसकी नमाज खराब निकली उसकी बाकी अमल खराब निकलेगी। बाजी, मेरी मोहतरमा बाजी जान, ये तो बताओ, आपको इतनी सारी बातें कहाँ से मालूम हुई? बहुत सीधी सी बात है, इल्मों की जगह पर ही मिलता है। हम रोजाना मदरसा पाबंदी से जाते हैं और वक्त निकाल के मोहल्ले के इज्तिमा में जाया करते हैं और सब बातें ताज़ा होती है। अरे बाजी, मैं अब क्या करूं? मैंने मदरसे की शक्ल भी नहीं देखी। अरे बाजी, इसमें घबराने की क्या बात है? हमारे मोहल्ले की फाशा मस्जिद के इमाम साहब ने मुख्तलिफ वक्त कुरान शुरू किया है। आप भी इसमें दाखिला करके इल्म हासिल कर सकती हैं। बाजी, हमारे लिए भी कुछ दुआ करना। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफिया अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने नेक बंदों में शामिल करके जन्नत फिरदौस अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बाजी, बस आज बहुत देर हो गई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। माशाल्लाह, ये बच्चों ने जो चीज बताई, अब हम गौर कर लें कि वाकई में हम नमाजें पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, और नहीं तो यहीं से नियत करके तमाम बहनें भी और भाई भी नियत करके होते कि इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। इनके लिए भी इनाम है और अपना इनाम लेके जाए। चल दे क्या बात, चलो। उसके बाद दुआ सुनाने के लिए हम ज़ैनब और उनकी सहेलियों को दावत देते हैं। इसमें रखो, बीच में दोनों को एक साथ। हाँ, चलो शुरू करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा अफ्ताही अबवाबा रहमतिका। मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। सोते वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सोकर उठने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। दावत खाने की दुआ। अल्लाहुम्मा अतिन मन अतअमनी वस्फी मन सक़ानी। चलो लाओ। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मरवत हस्न आलमगीर है मर्दाने गाजी का। शिकायत है मुझे यारब खुदावंदाने मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकेबाजी का। सदर आला मर्तबीत और साथियों, आसमानी सहीफों से लेकर कुरान पाक तक, कोहत और की तजल्ली से लेकर गारे हिरा के चिराग तक, हरमे काबा से लेकर आतश कदा फारिस तक, गौतम बुद्ध की तालीमात से लेकर कन्फ्यूशियस की निगारिशात तक, इल्म व दानिश की सदाई पुकार पुकार कर कह रही है, इल्म की शमा से हो मुझको मोहब्बत या रब, यानी इल्म की अहमियत। किताब फुरकान में अल्लाह ताला ने इंसान को तस्वीर कायनात का दर्ज दिया है, मका से लामका में झांकने की तरगीब दी है, ताकि हमारा बातन इल्म की रोशनी से मुनव्वर हो जाए, हमारा जाहिर बरखदरीना से खाबर हो जाए।
जो सीना मारिफत इलाही से आशना हो, जो जिगर में खाना हस्ती के असरार अपने अंदर ना समो सके, जो आँख हाजिर मौजूद के उस पार ना देख सके, जो कान अनसुनी आवाज ना सुन सके और जो दिमाग मुश्किल को आसान ना बना सके, वो बेकार महज है। जनाबे वाला, इल्म का फायदा क्या है? इल्म इंसान का क़ल्ब व शऊर में इजाफा करता है, ख़यालात को हकीकत का रूप देता है। इल्म के बगैर इंसान अधूरा रहता है, इल्म के बगैर इंसान का दिमाग बंद होता है। दानिश्वर कहते हैं कि कोई चीज़ इतना जल्दी दम नहीं तोड़ती जितना कि एक बंद दिमाग में नया ख्याल। इल्म इंसानी दिमाग की बंद तह खोलता है, क्योंकि दानाओं के मुताबिक इंसानी दिमाग एक पैराशूट की मानंद है। ये इस वक्त तक काम करता है जब तक खुला रहे। इल्म दानिश की तस्वीर महरो वफा की तनवीर है और भलाई के मामले में तदबीर है। इल्म इंसान को मसाइब से निकालता है, ये गुलामी नहीं आज़ादी बख्शता है। खदशात और गुमान की बजाय हक़ाइक़ से रोशनास करवाता है। जब ये इंसान को अंधेरे से रोशनी में लाए तो वो खैर और शर में फ़र्क कर सकता है। इल्म की मदद से जब इंसान तो हम परस्ती के शराब से निकलकर सच्चाई के गुलिस्तान में कदम रखे तो फिर वक्त उसे सलाम करता है। एक शेर पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। इल्म ने आज कर दिए हैं वो जुल्मात के ढेर, इल्म ने आज कर दिए हैं वो जुल्मात के ढेर, वक्त ने जिस पे बिठाए थे फना के पहरे। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, ये हमारे अय्यूब भाई किराना वालों की पोतरी है माशाल्लाह। इसमें इसके लिए भी इनाम लेकर अल्लाह 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 इन्नल दिया रिह अस्सबा यौमल इला अर्ज़िल हरम बल्लिग़ सलामी रोज़तन फ़ीहा नबीयुल मुहतरम। नसीमे सबा जब तू पहुँचे हरम, वो ज़मीं ऐसी जैसे है बाग़े इरम। नसीमे सबा जब तू पहुँचे हरम, वो ज़मीं ऐसी जैसे है बाग़े इरम। अर्ज़ करना सलामे मुहब्बत वहाँ, अर्ज़ करना सलामे मुहब्बत वहाँ, जलवा फरमा जहाँ है नबी मुहतरम। अल्लाह 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 मुस्तफ़ा 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 मौलूहु शम्सु सुहा मनफ़दुहु बद्रु दुजा मंज़लुहु नूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी। बिस्मिल्लाहि वलजना बिस्मिल्लाहि खरजना अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। घर से बाहर निकलने की दुआ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल्लल अज़ीम। अज़ान के बाद की दुआ। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदन लिल वसीलता वल फज़ीलता वबासहु मुक़ामन महमूदा लिल्लज़ी वअदहु इलना तस्मियान। सवारी पर सवार होने की दुआ। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तबीयत के खिलाफ हालात
परेशानी पर ये दुआ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जब किसी को हंसता हुआ देखे तो ये दुआ पढ़े अल्लाह सुन्नका आईना देखने की दुआ अल्लाह मान हसनका हसनका फासन की इसको देखे तो ये दुआ पढ़े जब गुस्सा आए तो ये दुआ पढ़े जब हादसा पेश आए तो ये दुआ पढ़े पढ़ना मुझे ज़रूर, मैं तुम्हारी उलझनों का मुकम्मल जवाब हूँ। साहब सदर मुअज़्ज़िज़ उस्ताज़ इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज जो मौज़ू मेरी ज़बान व ज़हन को रोशन तर करने लगा है वो मौज़ू है अहमियत कुरान। साथियों, कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कौन सी मुश्किल, कौन सी उलझन है जिसका हल इसमें मौजूद नहीं। ये कुरान अल्लाह ताला का खत है जो हमारी तरफ भेजा गया। अगर हमारे दोस्त का खत हमारी तरफ आए और वो किसी ऐसी ज़बान में हो जो हम ना पढ़ सके तो हमारी बरमुमकिन कोशिश हो गई कि कोई हमें ये बताए कि इसमें लिखा क्या है। मगर अफसोस अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आ गई है इस किताब के बारे में हमें कभी ये ताज्जुब नहीं हुआ कि इसमें लिखा क्या है। सारी जिंदगी गुजर जाती है ऐसे बगैर जाने और हम पढ़ते रहते हैं। एक शेर के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नजर आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नजर आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नजर आएंगी और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नजर आएगा। शुक्रिया। हदीस नंबर 21 तमाशे वालों में शामिल ना हो। हदीस नंबर 22 किसी का मजाक मत उड़ाओ। हदीस नंबर 23 वशकुरिल्लाह ताला अला निअमती, अल्लाह के निअमतों पर शुक्र अदा करो। हदीस नंबर 24 वस्बिर अलल बलाई वल मुसीबा, और मुसीबत पर सब्र करो। हदीस नंबर 25 वला तामन मिन क़ौबिल्लाहि, अल्लाह के बग़ी पकड़ से बेखौफ ना हो। हदीस नंबर 26 अल्लाह ताला की मखलूक में किसी पर लानत मत करो। हदीस नंबर 27 अक्सर मिनल तस्बीह सुभानअल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानअल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे बड़ो। हदीस नंबर 28 इन्नमल अमालु बिन्नियाति, अल्लाह का दारो मदार नियतों पर है। हदीस नंबर 29 सवाबुल मुस्लिम फुज़ूहु व क़ितालु कुफ्रुन, मुसलमानों का गाली देना गुनाह है और क़िताल करना कुफ्र है। हदीस नंबर 30 इज़ा ज़अनता फस्तईन बिल्लाहि, जब तुम मदद मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो। ठीक है, माशाअल्लाह। ये बच्चों पे जो मेहनत हुई है और मेहनत के बाद जो बच्चों के सामने बच्चों ने जो आपके सामने पढ़ा है, तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपके सामने है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो मकतब के जो अखराजात है, अब वहम गुमान ये होता है कि भाई जो है तो इतना बड़ा जलसा हो रहा, फिर मौलवीन की तनख्वाह है और दूसरी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो महसूस नहीं होती मकतब के अंदर, लेकिन लगी हुई रहती है। इसलिए भाई जो खर्च हुआ है और जो जमा हुआ वो आपके सामने हर साल की तरह मैं ये पेश करता हूँ, जिसमें जमा जो हुआ है, जिसमें बच्चों की फीस होती है। पूरे साल के अंदर बच्चों की जो फीस जमा हुई 2,74,060 रुपए। ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल के अंदर बच्चों की फीस के तौर पर, इसमें एडमिशन फीस भी है और जो है तो बच्चों की माहाना फीस भी है, इतना जो है तो जमा हुआ। उसके बाद जो है तो भाई जो खर्च हुआ, जिसमें खर्च के ताल्लुक से मुअल्लिमीन की तनख्वाह है जो पूरे साल में दी गई तनख्वाह है, उसके अलावा जो है तो भाई जो है कुछ इम्तिहान के मौक़ों पर जो है तो जो इम्तिहानात लेने के लिए आते हैं
ان کے لیے بھی ہدیہ دیا جاتا ہے، مولوین کے لیے بھی رمضان کے اندر ہدیہ دیا گیا، تو وہ جو خرچ ہوا 2,67,980 روپے خرچ ہوا۔ اب جو بچے ہیں ہمارے پاس وہ 6,080 روپے پورے سال کے اندر، اتنی رقم جو ہے تو باقی رہی۔ اب رہا سوال کہ یہ جو جلسے کا جو ہے تو اخراجات ہے، یہ جلسے کے اخراجات الحمدللہ میں جو ہے تو بڑے فخر کے ساتھ مکتب کی کمیٹی کے اوپر میں فخر کرتا ہوں۔ میں ممبر ہوں اس لیے نہیں، بلکہ یہ لوگوں نے، جیسے ہمارے صدر صاحب عبداللطیف بھائی، اس کے بعد ہمارے عبدالسلام بھائی سیکرٹری ہے، اور ہمارے گڈو بھائی بھی ہے جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، اور اسلم بھائی جو کیشیئر ہے، اور ہمارے ذاکر حاجی صاحب ہے اس میں، اور سجاد ہے، اور ہمارے جو ہے تو مجیب بھائی توس والے ہیں، اور اس میں ایک خادم کے طور پر میں بھی ہوں۔ تو الحمدللہ یہ لوگوں نے جتنا جلسے کا خرچ ہے، جس میں یہ انعامات بھی ہیں، یہ جو ہے تو مکتب کے پیسوں میں سے نہیں ہے، بلکہ اس کو کمیٹی نے جو ہے تو بذات اپنے فنڈ سے، جس کو ہم نے اپنا فنڈ جمع کیا، الحمدللہ ہماری کمیٹی میں ایک اپنا فنڈ ہے، جس کو جو دینا ہے وہ اپنے طور پہ جمع کرتا، وہ فنڈ جمع ہوا، اور وہ جمع ہونے کے بعد الحمدللہ جتنے انعامات آئے ہیں، کیونکہ مکتب کا میں نے آپ کے سامنے بتا دیا جو جمع ہوا اور خرچ ہوا، اس لیے یہ جو انعامات آئے ہیں، انعامات کی رقم میں نہیں بتا سکتا، پھر اور اشکالات آئیں گے کہ بھئی اتنے پیسے دیتے کیا؟ بھئی دینے والے بہت سخی ہیں، دین کے دنیا کی چیزوں میں بہت سارے لوگ طرح طرح کی چیزیں خرچ کرتے ہیں، شادی ہے تو 10 لاکھ روپے خرچہ کرتے ہیں، لیکن بھئی کہ مسجد کا معاملہ آ جائے، مدرسے کا معاملہ آ جائے تو بھئی ہم جیب میں دیکھتے ہیں، بچوں کی فیس کا معاملہ آ جائے تو بھئی جو ہے تو آج آنا، کل آنا، پرسوں آنا، ایسی بہت ساری باتیں چلتی ہیں، لیکن جہاں پر شادی کا معاملہ آ گیا، اب برتھ ڈے پارٹیاں بھی ہو رہی ہے، جس کے اندر کیک 2,000 5,000 کیک لا کر کاٹ کے لوگ جو ہے تو پھینک دے رہے ہیں۔ میں اس لیے بات بول رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں ہو رہی ہے معاشرے کے اندر، اور الحمدللہ کمیٹی نے جو کیا ہے ہم دکھاوے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو ہے تو ابھارنے کے لیے ہے کہ لوگ جو ہے تو دین پر بھی خرچہ کرنے کے آج لوگوں کے اندر استطاعت ہے، صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن کرانے والے ہونا۔ اب ظاہر میں چہرہ میرا سامنے آتا کہ بھئی مکتب کے ذمہ دار بولے بھئی آصف بھائی ہے، بولے ہے نا بھائی، نہیں بھائی چہرہ میرا دکھتا ہے، کرنے والے اصل میں یہی لوگ ہیں، کرنے والے یہ لوگ ہیں، چہرہ میرا ہے سامنے، لیکن جو ہے تو یہ لوگوں کو کبھی جو ہے تو یہ چیز کے تعلق سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب بھی خرچ آیا یہ لوگوں نے کبھی جو ہے تو اس میں آنا کانی یا کنجوسی سے کام نہیں لیا، بلکہ دل کھول کے خرچ کیا۔ خرچ کیا ہے اتنا پوچھتے بس۔ یہ مکتب کا بھی ابھی جلسے کا خرچ صرف میں نے بتایا کہ بھئی اتنی اماؤنٹ اپنوں کو انعامات کے ساتھ لگے گی، تو یہ لوگوں نے پورا خرچ اپنے اوپر بانٹ کر جو ہے تو بھئی جمع کر دیا، پیسے بھی الحمدللہ میرے پاس جمع ہوئے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو ساری چیزیں ہوئی یہ کمیٹی کے فنڈ کی طرف سے ہوئی ہے۔ اللہ یہ دینے والوں کو جزائے خیر دے، بہترین بدلہ دے، اللہ دونوں جہاں کی ان کو کامیابیوں سے نوازے، اس لیے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، اتنا جو ہے تو یہ لوگوں نے کیا ہے، اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اب بھائی وہ چیز کا وقت ہے جس کے لیے ہم لوگ جو ہے تو یہاں پر منتظر ہے، کیونکہ سامنے بڑے بڑے انعامات دکھ رہے، اور جو ہے تو یہ انعامات جو ہے تو بھائی منتظر ہے، ہر کوئی ہے ادھر بہرے ہیں کہ بھائی دل میں خواہش ہے کہ بھائی میرے بچی کو ملے گا یا میرے بچے کو ملے گا، اور بھئی مردوں میں بھی ہے کہ بھئی کوئی دادا آئے ہے، کوئی نانا آئے، کوئی ماموں، کوئی چچا، ہر کوئی انتظار میں ہے کہ بھئی یہ انعامات ہم کو ملے، اس لیے بھئی دیں گے انشاءاللہ جتنوں کی نے محنت کر کے۔ اور بھئی یہ انعامات جو ہے، اور ایک بات ذہن میں جو ہے تو میرے سامنے آئی ہے کہ بھئی جلسے میں جو لوگوں نے بھئی اچھا پڑھا ان کو انعام نہیں، بھئی یہ اس کے انعام نہیں ہے، اس کا تو جو دینا تھا بھئی پیسوں کے طور پر یہ لوگوں نے جو ہے تو ماشاءاللہ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں یہ لوگوں نے جو ہے تو دے دیا اپنے طور پر۔ یہ جو انعامات ہے، جو امتحان ہوا ہے پچھلے اتوار کو، وہ اتوار کے اندر جو نمبرات حاصل کیے ہیں بچوں نے، یہ اس کا جو ہے تو انعام ہے، یہ جو ہے تو جلسے کے انعامات، جلسے میں حصہ لینے والوں کے انعام نہیں ہے۔ ابھی اس سے پہلے بھائی جو بچے فارغ ہو رہے ہیں، 5 بچے ہیں جو یہاں سے ناظرہ کر کے فارغ ہوئے ہیں، جس میں 4 لڑکیاں ہیں اور 1 لڑکا ہے، تو سب سے پہلے انہی کو جو ہے تو بھائی میں جو ہے تو بلانا چاہوں گا
تاکہ جو ہے تو ہمارے ایوب بھائی کی طرف سے کلام پاک ہے، اور دوسرے ہمارے ایک ہے جو ہے تو ہمارے عبدالسلام بھائی کی جو ہے تو بھتیجے ہیں، ان کے طرف سے بھی جو ہے تو کچھ یہ فارغین کے لیے جو ہے تو دیا گیا ہے۔ اب یہ جو ہے تو بچے آئیں اور بھئی اپنے اپنے فارغین کے طور پر ان کے جو ہے تو جو بھی چیز ہے کلام پاک کتابیں وغیرہ یہ لے کر جائیں۔ آ جائے بھائی۔ اور ان کی ایوب بھائی کی دونوں پوتریاں ہیں۔ چل دے وہ کا ہے دوسرا؟ ان کو کپڑے ہے، جانماز ہے، ساری تفصیلات کرانا۔ حضرت کی جانب سے ان قرآن مکمل کرنے والے جو ہماری طلبہ اور طالبات ہیں ان کی طرف سے جائے نماز ہے، کچھ کپڑے ہیں، اور دو صاحب کی طرف سے قرآن مجید ہے۔ ہو گیا اللہ تعالیٰ دینے والے کو بہترین عطا فرمائے۔ یہ افسر یہ ہو گیا نا؟ سب ہے۔ مدعے کی طرف آ جاتے ہیں، میں کم سے کم وقت میں انشاءاللہ یہ لوگوں کو جو ہے تو چیزوں سے جو ہے تو جو انعامات رکھے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلے میں جو بلاؤں گا جنہوں نے جو حافظ فیضان صاحب کی کلاس کی ہے، بھائی ایک رائے ہمارے حافظ صاحب نے دیے ہے کہ انعامات بڑھ گئے تو بھئی امی بھی چلے جائیں گی اور ابا بھی چلے جائیں گے، صحیح ہے نا؟ ہاں، اس لیے بولے بھائی جو اصل جو ہے تو مہمان آئے ہوئے ہیں پھر بات سننا ادھوری رہ جائیں گی، اس لیے بھائی تھوڑا انتظار کریں، انشاءاللہ تھوڑی دیر جو ہے تو بات کریں گے۔ مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں، ان سے جو ہے تو بھئی جو بات ہوگی بات سب سنیں اور انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، وقال تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن او علمه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام حضرات علماء کرام اور معزز سامعین اور پیارے بچوں اور بچیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، یقیناً کافی دیر سے آپ تمام حضرات اس جلسہ گاہ میں بیٹھے ہیں، اور خصوصاً یہ بچے اب اپنے انعام کے منتظر ہیں، اس لیے ان کے انعام کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، بہت مختصر سے وقت میں بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے آج کے دور میں جو مدارس اور مکاتب چل رہے ہیں، یہ امت کا بہترین سرمایہ ہے اور امت میں ایمان اور اسلام کو باقی رکھنے کا محفوظ ذریعہ ہے۔ مدارس اور مکاتب یہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔
मदारिस के ज़रिए, मकातिब के ज़रिए हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत की जा रही है। इनको दीन की, ईमान की बुनियादी चीज़ें यहाँ सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, और ये हर हाल में ईमान पर, इस्लाम पर कैसे बाकी रहे, ये मकातिब में सिखाया जाता है। मकातिब की एक कड़ी इस मस्जिद का मकतब है, मकतब सौतुल कुरान। ये मकतब गोया कुरान की एक आवाज है। सौतुल कुरान, कुरान की आवाज। ये मकतब हमारे इस मोहल्ले वालों को और इस इलाके वालों को ये पैगाम दे रहा है कि आ जाओ, कुरान की तरफ आ जाओ, आ जाओ मस्जिद की तरफ आ जाओ, आ जाओ मदरसे की तरफ आ जाओ, मकतब की तरफ आ जाओ। अगर कुरान की तरफ आ जाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो गलबा पहले मुसलमानों को दिया था, वही गलबा आज भी कुरान पाक के जरिए से अल्लाह हम सब को देगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक शेर कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने कुरान की तालीम को जैसे अपनाना चाहिए था वैसे कुरान की तालीम को नहीं अपनाया। आज दुनियावी तालीम को बहुत एहतमाम के साथ सीखा जा रहा है, सिखाया जा रहा है। यकीनन सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। हमारे अपने मुस्लिम मुआशरे का कोई बच्चा असली तालीम से, दुनियावी तालीम से महरूम न रहे, ये बहुत जरूरी है। इसकी तरफ हमारी तवज्जो बहुत जरूरी है। लेकिन क्या जरा हम ये सोचें और अपने गिरेबान में झांक कर देखें, जितनी तवज्जो और अहमियत दुनिया की तालीम की तरफ आज दी जा रही है, क्या उतनी तवज्जो और अहमियत दीनी तालीम की तरफ है? मकतब में बच्चा 1.5 घंटे के लिए आता है, 1 घंटे के लिए आता है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के लिए आता है। उसमें कितना एहतमाम है, कितनी पाबंदी है, और मकतब के उसूल और ज़वाबित का कितना ख्याल रखा जाता है, ये सब जानते हैं। जबकि यहाँ उनकी आखिरत को संवारा जा रहा है, यहाँ उनकी आखिरत को बनाया जा रहा है, और कब्र में साथ आने वाली चीजों को यहाँ उनको दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। ये मकतब के बच्चे मकतब के बैग के साथ और मकतब के यूनिफॉर्म के साथ मकतब में आते हैं, मदरसे में आते हैं। आप ये बच्चों को जब देखते होगे, घर वाले रवाना करते होगे, तो ये बच्चे अपना मकतब का बैग अपने सीने से लगाकर मकतब की तरफ आते हैं, मस्जिद की तरफ आते हैं, गली से चलकर आते हैं। गली वाले भी देखते होंगे ये बच्चा मकतब में जा रहा है, मकतब का बैग इसने सीने से लगाया है। और यही बच्चा जब मकतब से घर जाता है और स्कूल के लिए जाता है, स्कूल का बैग भी होता है, स्कूल का यूनिफॉर्म भी होता है। स्कूल का बैग वो सीने से लगा कर नहीं जाता है, वो अपने पीठ पर लगा कर जाता है। स्कूल का बैग पीछे लटका कर जाता है और मकतब का बैग आगे लगा कर आता है। ये बैग ये पैगाम देता है और ये बैग ये सबक दे रहा है कि आगे जो बैग लटकाया जा रहा है ये आगे काम आने वाली चीज है, और स्कूल की चीज पीछे जो लटकाई जा रही है ये पीछे रह जाएगी, आगे नहीं आएगी। तो ये मकतब बहुत बड़ी नेमत है, इसको गनीमत समझे। माशाअल्लाह यहाँ का निज़ाम मजबूत है, तालीमी एतबार से अल्लाह ताला और मजबूती अता फरमाए। मजबूती कैसे होगी? सबकी तवज्जो होगी, मुअल्लिमीन की भी, पढ़ाने वालों की भी, पढ़ने वालों की भी, माँ बाप की भी, कमेटी वालों की भी, जिम्मेदारान की, सबकी तवज्जो होगी तो ये मकतब और जानदार बनेगा इंशाअल्लाह। आज 5 बच्चों ने मकतब में नाज़िरा मुकम्मल किया है। अब वो वक्त आना चाहिए और वो मौका आना चाहिए कि इस मकतब सौतुल कुरान से
बच्चे हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करें, हाफिज कुरान बने। यहाँ से लड़कियां हाफिज कुरान बने, लड़के हाफिज कुरान बने। ये मौका आना चाहिए। ये कैसे आएगा? सबकी तवज्जो रहेगी, सबकी मेहनत रहेगी तो ये मौका आएगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला बहुत जल्द वो मौका लाएगा इंशाअल्लाह। और देखिए, ये मकतब पर जो तवज्जो देने की जरूरत है खास तौर से, वो सारे मकतब में पढ़ने वाले माँ बाप की बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है। बच्चों को मकतब में पाबंदी के साथ भेजे, यूनिफॉर्म के साथ भेजे। फीस का निजाम है माशाअल्लाह, फीस की कारगुजारी आसिफ भाई ने जो जिम्मेदार है मस्जिद के, पूरे साल की कारगुजारी सुना दी। मकतब की फीस की कारगुजारी, ये बहुत कम जगह पर इस तरह होता है। हालांकि हर मकतब में फीस का निजाम है, वहां माहाना कारगुजारी होती है, लेकिन ये सालाना कारगुजारी बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। लेकिन इसी पर बस नहीं करना चाहिए। फीस का जो निजाम है इसको और मजबूत किया जाए, पढ़ाने वालों को खातिर खा तनख्वाह दी जाए, पढ़ाने वालों को माकूल तनख्वाह दी जाए, ताकि ये और मेहनत से पढ़ा सके और ज्यादा मेहनत कर सके। जो शिफ्ट दी जाती है वो शिफ्ट में और इजाफा किया जाए। और यहाँ के माहौल को देखकर ऐसा लगा कि अगर पूरे औरंगाबाद शहर में मकातिब की जो शिफ्ट चल रही है उसका अगर अंदाजा लगाया जाए और उन सारी शिफ्टों से बढ़कर अगर इस मकतब में शिफ्ट तय की जावे तो आसानी से वो हल हो सकती है। यहाँ के जिम्मेदारान के जज्बों को और कमेटी को देखकर इस तरह का अंदाजा लगाया जा रहा है। इंशाअल्लाह ये भी होगा। अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए और इस मकतब में पढ़ाने वालों को अल्लाह ताला खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। और दोस्तों बुजुर्गों, आखिरी बात ये कि देखिए, ये बच्चे हमारे पास अमानत है, ये कौम का मुस्तकबिल है। ये बच्चों के ईमान की हिफाजत हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। आज फितनों का दौर है और तरह तरह फितने रूनुमा हो रहे हैं। फितने पहले दुनिया की शक्ल में आया करते थे, आज फितने दीन की शक्ल में भी आ रहे हैं। ये फितनों को जानना, फितनों को पहचानना ये बहुत जरूरी है, वरना अगर हमने फितनों का अंदाजा न लगाया तो हमारी नस्लें हमारी हाथों से निकल जाएगी, हमारे नौजवान हमारे हाथों से निकल जाएंगे और ईमान का अल्लाह न करे सौदा कर बैठेंगे। आज हमारे मुस्लिम माशरे की बाज लड़कियां ईमान का सौदा करके गैरों के साथ फरार हो रही है और गैरों के साथ शादी बियाह रचा रही है, इस्लाम मजहब को छोड़ रही है। याद रखना चाहिए, सारी इज्जतें, सारी शान व शौकत और गलबा और सब कुछ अगर मिलेगा वो इस्लाम ही में मिलेगा, वो इस्लाम ही में मिलेगा। इज्जत इस्लाम के अलावा कहीं नहीं मिल सकती। दुनियादारों के पास और हुकूमत के पास, ओहदेदारों के पास इज्जत नहीं मिलती, इज्जत मिलेगी इस्लाम की वजह से मिलेगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े फख्र से कहा करते थे, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, कि हम वो कौम हैं जिन्हें अल्लाह ने इस्लाम की वजह से इज्जत दी है। हमें भी ये तय कर लेना चाहिए, हमें जो इज्जत मिली है आज तक इस्लाम की वजह से मिली है, आज के बाद भी मिलेगी, इस्लाम ही की वजह से मिलेगी। अल्लाह के पास काबिल कबूल अगर कोई चीज है वो इस्लाम ही है। इसीलिए यहाँ मकतब में इस्लाम को सिखाया जा रहा है, इस्लाम को बताया जा रहा है, मसाजिद के माहौल में इस्लाम को बतलाया जाता है, ईमान को सिखाया जाता है, आमाल की तरबियत दी जाती है। तो मर्द हजरात मस्जिदों से अपने आप को जोड़े, ये मकतब में ये छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे मकातिब से अपने आप को जोड़े, मस्तूरात ये इज्तिमाई तालीम के हलकों में अपने आप को जोड़े, अपने घरों में तालीम का माहौल बनाए, दीनी फिजा को आम करे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है हर फितने का हम मुकाबला कर लेंगे और हर फितने के
वक्त में हम इंशाअल्लाह ईमान पर बचे रहेंगे, ईमान पर बाकी रहेंगे। अल्लाह ताला हर हाल में हम सबको ईमान पर बाकी रखे, और जितने मकातिब और मदारिस और दावत की मेहनत, खानकाहों की मेहनत, औलिया किराम बुजुर्गान दीन की मेहनतें चल रही है, अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए और सबका हिस्सा हम सबको अल्लाह ताला बनने की तौफीक अता फरमाए। और आज के इस मकतब के जलसे को अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इसमें अल्लाह ताला मजीद तरक्यात अता फरमाए। जो कमी है अल्लाह अपने फजल से उस कमी को दूर फरमाए। मुआविनीन के, मुखलिसीन के ताउन को अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जो ये इनामात के हकदार हैं, सबसे पहले मैं छोटी क्लासों से शुरू करूंगा, जिसमें हाफिज फैजान साहब की क्लास है, ये बाद असर चलती है। इसके अंदर जो सबसे पहले इनाम लेने वाली बच्ची है वो अलीना बिनते इमरान साहब, वो आए और अपना जो है तो दुवम हिस्से का इनाम लेकर जाए। मकतब में इनका दूसरा जो है तो आया है अलीना बिनते इमरान। इनके वालिद साहब भी आए भाई, पीछे इमरान भाई बैठे हुए दिखे मेरे को, आ जाए, है क्या पीछे? जाओ, अकेले आ जाओ बेटे, आ जाओ। और कोई होंगे उनके मामू वगैरह तो आ सकते साथ में। चलो ये भी हाफिज साहब, ये बच्ची ने जो है तो अपनी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा नंबर हासिल किया है। अब इसके बाद जो है तो भाई हाफिज सिराज साहब की क्लास है, ये सुबह में चलती है। इसमें जो है तो आए जवाद इब्ने अब्दुस समी, इन्होंने अपनी क्लास में दूसरा नंबर हासिल किया है। आए भाई, इनके है क्या भाई कोई? इनके वालिद साहब बोलो, कोई है? आइए आइए, जल्दी आए भाई, जल्दी आए, आ जाए। माशाल्लाह भाई, अल्लाह और मजीद तरक्की दे। इसके बाद इनकी जो है तो शाम की क्लास है सिराज साहब की, इसके अंदर जो है तो जो है जियान इब्ने शाकिब साहब। काय भाई, जियान है क्या? जियान इब्ने शाकिब कहाँ है? आ जाओ भाई, आ जाओ। माशाल्लाह, इनको भी इन्होंने अपनी क्लास में जो है तो दूसरा नंबर हासिल किया है। अब है तारिक साहब की जमात जो है तो क्लास है, ये शाम में असर बाद चलती है। इसमें है अरीशा इब्ने अब्दुल सत्तार, अरीशा इब्ने अब्दुल सत्तार है भाई, अरीश है क्या? हाँ, अरीश इब्ने अब्दुल सत्तार, माफ करना, अरीश माने अरीशा कह दिया। अरीश इब्ने अब्दुल सत्तार साहब माशाल्लाह, इन्होंने अपनी क्लास में जो है तो दूसरा नंबर हासिल किया है। अब है हाफिज अरीफ साहब की क्लास, इसमें दूसरे नंबर पे इनाम लेने वाले रेहान इब्ने शकील, इनके वालिद होंगे तो आ जाए भाई, जल्दी से आगे, जल्दी आए भाई। शकील भाई इतनी दम से आएंगे तो टाइम लग जाएगा, जल्दी आ जाओ। अब जो है तो शाम, ये सुबह की क्लास थी, शाम की क्लास है अरीफ साहब की। इसमें दूसरा नंबर हासिल करने वाले अरसलान इब्ने अनीस, अरसलान इब्ने अनीस, लिख जाओ। माशाल्लाह, अब हाफिज मोहसिन साहब की क्लास है, इसमें जो दूसरा नंबर हासिल करने वाली है आयशा बिनते अब्दुल हमीद। भाई इनके है क्या कोई? चचा बोलो, वालिद साहब बोलो, कोई है क्या? आयशा बिनते अब्दुल हमीद, अब्दुल रऊफ साहब की पोतरी है ये शाम की क्लास है। अब जो है तो दूसरा जो है तो है इसमें शाम की क्लास का रुमैसा बिनते इरफान, इन्होंने अपनी क्लास में दूसरा नंबर हासिल किया है। इरफान साहब होंगे तो आ जाए भाई सामने। अब जो है तो हमारे इमाम साहब की क्लास है, इसमें जो है तो दूसरा नंबर हासिल जो है तो इसमें हासिल करने वाली है अक्सा बिनते शफीक, अक्सा बिनते शफीक साहब। ये नाम दे उसको, अक्सा। ये कौन रहा? ये कौन रहा इसमें?
अलीना हो गया, हाफिज जवाद हो गया, जियान हो गया, हरीश भी हो गया, परवाज मुफ्ती है, रेहान में शकील हो गया, इसमें अरसलान दे दी, आयशा भी हो गया, रोमैसा हो गया, हाफिज हो गया, एक कौन रहा क्लास में नंबर 1 पर आने वाले। अब इसमें सबसे पहले है हाफिज फैजान साहब की क्लास, इसमें नंबर 1 पर है क्योंकि भाई पूरे मकतब का फर्स्ट अलग है, पूरे मकतब का फर्स्ट अलग है और दूसरा जो है तो नंबर अलग है, तो इसलिए दूसरा दे दिए। अभी पूरे मकतब का फर्स्ट अलग और अब ये जो है तो पूरे क्लास का फर्स्ट है। हाँ, अब हाफिज फैजान साहब की क्लास फातिमा बिनते अमजद, इन्होंने अपनी क्लास में नंबर 1 पर हासिल किया है। फैजान साहब की क्लास आया भाई, जल्दी से आ जाए, इनके वालिद होंगे जल्दी आ जाए। उसके बाद हाफिज सिराज साहब की क्लास है माही नूर बिनते सिद्दीक साहब, ये सुबह की क्लास माही नूर बिनते सिद्दीक साहब, इनके वालिद साहब है क्या भाई? नहीं है, हाँ, ये रुक जाओ बेटे, माही रुक जाओ भाई, उनको आम दो, फिर वो नहीं है अभी साहब, ये नीचे रख दो, इसको ये रख दो, ये दो इसमें से। भाई शाम की क्लास है सिराज साहब की अदनान इब्ने शाहरुख, शाहरुख है क्या भाई? अदनान इब्ने शाहरुख। उसके बाद तारिक साहब की क्लास है, इसमें नंबर 1 पर जो आए हैं क्लास के अंदर अबू जमा इब्ने बशीर है भाई, अब्दुल सत्तार भाई है क्या? ये इनके बड़े अब्बू हैं, आ जाए भाई, इन्होंने अपनी क्लास में नंबर 1 आए हैं। अब है हमारे इमाम साहब की क्लास है, इसमें आए हैं जोया बिनते मकसूद, इमाम साहब ये है जोया बिनते मकसूद। अब जो है तो भाई हमारे हाफिज अरीफ साहब की क्लास में जो नंबर 1 पर आए है उमेर इब्ने मकसूद। हाँ, अब इसके बाद मैं इनकी सुबह की क्लास है अमीन इब्ने समीर, इनके भाई जो है तो हमारे सदर साहब का भतीजा है ये। सदर साहब आ जाए भाई, ताकि सदर साहब का सब दीदार भी कर ले कि भाई मकतब के सदर कौन है। आ जाए भाई, जल्दी उठ के, टाइम नहीं है भाई, इतना टाइम नहीं है। सदर साहब आइए, ताकि बेचारे ये उलमा कराम भी जो है तो देख ले कि हमारे सदर कौन है मकतब की। कब से जो है तो वो भी बेचैन है कि बोले नीचे वाली पार्टी इतना बड़ी, ऊपर वाली पार्टी कितनी मजबूत होंगी करके। आ जाए भाई। अब हाफिज मोहसिन साहब की क्लास है, इसमें जो है तो भाई जो नंबर 1 पर आई है सुबह की मसीरा बिनते इमरान, मसीरा बिनते इमरान। अब बचे भाई 2 इनाम। अब भाई ये इनामात जो है तो ऐसे है कि ऐसा समझो कि 2 में कंपटीशन है, क्योंकि एक फर्स्ट है और एक जो है तो क्लास का फर्स्ट और एक मकतब का फर्स्ट है। लेकिन असल में जो दिखता वो होता नहीं और जो होता वो दिखता नहीं, वो इंशाल्लाह जो है तो सबके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये जो है तो मकतब के जो है तो क्लास के फर्स्ट है, मकतब के नहीं है। ये है मरियम बिनते अब्दुल मुसव्विर। क्या है भाई? मरियम बिनते अब्दुल मुसव्विर है क्या भाई? अब्दुल मुसव्विर है यहाँ, माशाल्लाह। आइए, अब बारी है भाई पूरे मकतब का, नहीं वो नहीं हाफिज साहब, ये वाला, ये क्लास का है, मकतब का नहीं है। मकतब का जब धमाल फुटेगा
तो सबकी आगे इंशाल्लाह जो है तो फट जाएंगी, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, क्योंकि मकतब का अभी फुटने वाला है। ठीक है, चलिए अभी मकतब का फर्स्ट आने वाला बच्चा या बच्ची जो भी है मैं आपके सामने बताऊंगा। इंशाल्लाह इनाम देख के आप अंदाजा कर लेंगे, लेकिन पहले मैं बच्चे को बुलाऊंगा, उसके बाद इनाम दूंगा। ठीक है इंशाल्लाह। और वो बच्चा है माशाल्लाह बहुत ही होनहार, इन्हें अपनी क्लास के अंदर 399 मार्क लिया, नंबरात जो लिए 399 लिए। और वो बच्चा है हादी इब्ने सैयद इरफान। आ जाए भाई, इरफान साहब भी आए, आ जाए। हाँ इमाम साहब आओ, वहीं बैठो, इमाम साहब बैठो, सही बताता हूँ मैं कुछ, आप भी बोलेंगे क्या करे करके। आ गए, चलो भाई इनका इनाम दे दे। ये उठा के देना है कि दूसरा देना है कुछ? चल लाओ भाई, इनका इनाम लेकर आओ। भाई ये इनका फर्स्ट इनाम है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने पूरे मकतब में 1 नंबर हासिल किया है। मैं तमाम ही जो है तो जो आए हुए हैं मेहमान खुसूसी, इनके हाथों से जो है तो वही चाहूंगा कि इनके हाथ में दे। ये भाई मकतब का पहला इनाम है जो इस बच्चे ने जो है तो हासिल किया है। टॉपर जिसको बोला जाता, ये बच्चा मकतब का टॉपर है। और भाई हमारी कमेटी की तरफ से इस बच्चे को 1 साइकिल जो है तो इनाम के तौर पर दिया जाता। अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत बहुत मुबारक भाई इनके वालिदैन को, इन्होंने भी मेहनत की। और बतौर खास इन तमाम उस्तादों को मैं मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने अपने बच्चों के ऊपर मेहनत की। और इस बच्चे के जो उस्ताद है खास जो है तो हाफिज अरीफ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से हमारे हाफिज मोहसिन साहब की क्लास ने बाजी मारी थी। ये बारी को माशाल्लाह हमारे हाफिज अरीफ साहब ने मेहनत की और बच्चों को जो है तो कामयाब बनाया। अल्लाह कबूल फरमाए। ले भाई नीचे, ठीक है, दुआ कर लेंगे। नहीं वो जो है तो चुप चुप। भाई ये जो इनाम है ये इनाम नहीं है, सिर्फ नजरों का धोखा है जो हमने रखा था। इसको जो है तो वैसे ही रखेंगे, इसका राज अंदर खुलेगा क्या है। तो भाई एक ऐलान है जो मैं बता जो है तो कर दूं कि भाई माशाल्लाह कल से मकतब को छुट्टियां रहेंगी। ये छुट्टियां जो है तो 9 तारीख तक रहेंगी जून की। 10 तारीख को इंशाल्लाह मकतब हस्बे मामूल शुरू हो जाएगा। और मकतब के अंदर जो है तो 1 जून से इंशाल्लाह एडमिशन होंगे जो है तो। इसलिए जो हजरात अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहते हैं वो बाद असर के 1 जून, हाँ याद रखें, ना तो अभी से इमाम साहब के पीछे लग जाएंगे। 1 जून से वो अपने बच्चों को साथ लेकर उसका आधार कार्ड और जो है तो 2 फोटो लेकर बाद असर के 1 जून के बाद आके जो है तो इमाम साहब से राब्ता करे। याद रखें कल से लेकर, कल 3 तारीख है, 3 मई से लेकर तो 9 जून तक मकतब को छुट्टियां रहेगी भाई। और इसके बाद अभी दुआ होगी, दुआ के बाद अजान होगी, नमाज होगी। जो हजरात ने ईशा अभी तक नहीं पढ़े हैं वो ईशा पढ़ के जाए, कोई बगैर नमाज के ना जाए। अल्लाह होने वाले इस इजलास को बेहद कबूल फरमा। अल्लाह इस इलाके के लिए मौला करीम खैर का इसको जरिया फरमा, दीन की फिजाओं को आम करने का जरिया फरमा। हर घर में 100% दीन को जिंदा फरमा, हर मकतब को मजबूत फरमा, हर मदरसे की हिफाजत फरमा, हर मस्जिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह आने वाले पूरे मजमे को कबूल फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमा। ए मौला करीम इस मकतब को मज़ीद तरक्कियात से माला माल फरमा, इसमें पढ़ाने वालों की ए मौला करीम जायज़ हाजात को अपने खजाने गैब से पूरा फरमा, सारी ज़रूरियात का तकफ़ुल फरमा, पढ़ने वालों को कबूल फरमा, पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप को कबूल फरमा। ए मौला करीम हम सब की जायज़ हाजात को अपने फजल से पूरा फरमा।